Getting NMR spectrum. Those atoms which have nuclear magnetic quantum number I will be 0. They are NMR active. Nuclear magnetic quantum number I, that is the nuclear spin, maybe say, and how will produce nuclear spin? In general, in the nucleus have neutrons and protons, and the spins of some of the spins of neutrons and some of the spin of protons uh, give resultant spin of the nucleus, and therefore they may be called nuclear spins. And if nuclear spins value will be suppose integral, just like 1 2 3, and fractional spins half, 1 by 2, 3 by 2, or maybe 5 by 2, then they are NMR active. But if resultant nuclear spin I if have 0 value, like carbon 12, oxygen 16, and sulfur 32, then they are NMR inactive nucleus. Therefore, we will not get NMR spectrum of these types of compounds. In general, organic chemist, where the NMR technique is generally involved, maybe in the reaction mechanism or any other things, so therefore 1H, carbon 13, fluorine containing compounds, phosphorus containing compounds, they will be analyzed through NMR spectrometer, because they have I equals to half integral spin, half 1 by 2 spin. Proton atomic number having odd number, okay, then they have integral spins. And examples, deuterium and 14th nitrogen 14, I will be 1. They are also NMR active. And those nuclei which have even number of neutrons and even number of means protons, mass even number and even number of atomic numbers, then I will be 0. Then example, carbon 12 and oxygen 16, they are NMR inactive. So the following the points where 1H NMR, the features for 1H NMR in general. Spinning nucleus generates a magnetic field. Any charge species, any species which have charged, which has charged, they have generate the magnetic field, because nucleus having neutrons and protons are positively charged. If number of protons more, then charge will be more, and therefore required magnetic field generated by the spinning nucleus will be high. So the magnetic field generated by the spinning nucleus depends on the number of protons and neutrons ratio, and the resulting spin magnet has a magnetic moment proportional to the spin. तो जब भी कोई न्यूक्लियस, जब भी हम एटम की बात करते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और जब हम उसको वो चूँकि अपने उसकी न्यूक्लियर स्पिन होती है, और वो न्यूक्लियर स्पिन के कारण वो स्पिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रन करती रहती है, और इस कारण से उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और जब ऐसे न्यूक्लियस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यह दो पॉसिबल स्पिन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ. तो व्हेन we put the nucleus in an external magnetic field, there are two possibilities: plus half state where the nuclear spin align on the direction of the magnetic field, that is called alpha state, or maybe say low energy state, and this is shown by plus half. And when the nuclear spin oppose the applied the direction of applied magnetic field, then this is high energy state, and this is called beta state, and it is represented by minus 1/2, because proton spin
nuclear spin just opposite the direction, therefore minus half. So in general we can represent the spectrum in the basic theme कि when in the atom various nucleus of hydrogen present and the nuclear spins are randomly moving in the molecule, and without magnetic field they have same energy levels because they are degenerate, and nuclear energy levels are degenerate, or therefore the nuclear spins having the in same energy level, present in same energy level, means all nuclear spins present in same energy level. But when we applied the magnetic field, when nucleus we put in the magnetic field, so due to presence of magnetic field, nuclear energy level will be split in two energy states. One is low energy state, that is called alpha state, and another is high energy state where spin minus half, and that is called beta state. And these two energy states can be found on the basis of this formula: types of orientation equals to 2I plus 1. I is the nuclear magnetic quantum number, and for proton for 1H I value equal to 1 by 2, and therefore when we put 1 by 2, then two possible orientations occur, and therefore high energy state and low energy state. Low energy state has nuclear spin in upward direction plus half, and high energy state has nuclear spin in opposite direction, that is called beta state. And the separation between these two energy levels are again quantized, having definite amount of energy del E equals to H del nu, एंड जो एनर्जी गैप होता है इन दोनों के बीच का, वो रिक्वायर्ड जो एनर्जी हमको यहाँ लगती है एनएमआर में, दैट इज द appropriate frequency of radio wave is required. And when this energy gap, the energy of this energy gap matches with the frequency of radio wave, then resonance takes place and nuclear spin jump from low energy state to high energy state. Then we can get NMR spectrum and resonance. This is the resonance condition. This energy gap where the required energy matching with the frequency of radio wave region, then resonance takes place, and the condition that where low energy state nuclear spin jump to high energy state. So this is the resonance condition. And in general when we applied external magnetic field, जब हम external magnetic field में मॉलिक्यूल को रखते हैं, तो चूंकि हम यहाँ 1H NMR की बात कर रहे हैं, तो H के लिए I की वैल्यू 1/2 होती है. देयरफॉर टू पॉसिबल ओरिएंटेशंस हियर, एक लो एनर्जी स्टेट और एक हाई एनर्जी स्टेट, और इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का गैप होता है, उस एनर्जी के गैप की फ्रीक्वेंसी ये न्यूक्लियर स्पिन एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी. रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी इज द लोअर एनर्जी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेरी लो एनर्जी, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी गैप्स हैविंग very low energy gap, and it matches with the radio wave region. Okay, and formula here, nu equals to gamma h0 upon 2 pi. न्यू क्या है यहाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, गामा गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, एंड H0 इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड.
तो यहाँ हम देखें कि गामा एंड 2 पाई बोथ आर कांस्टेंट, इट मीन्स न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h0। तो न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, इट मीन्स अगर हम न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h0, इट मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं तो वी विल सी द सेपरेशन बिटवीन these two एनर्जी states विल बी इंक्रीज्ड। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वह भी बढ़ जाता है, बिकॉज न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h0। और इससे हमें क्या एडवांटेज होता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें तो उससे हमें एडवांटेज मिलता है कि हमको हाई रिजोल्यूशन वाला एनएमआर स्पेक्ट्रम मिल जाता है। और पीक की जो ओवरलैपिंग होती है, जब बहुत सारी पीक्स आती है एनएमआर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स के कारण, उसकी ओवरलैपिंग कम हो जाती है एंड वी विल गेट क्लियर एंड हाई रिजॉल्व्ड एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो हम अगर यहाँ देखें एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में 60 मेगाहर्ट्ज से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं 400 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, देन रिजोल्यूशन इंक्रीजेस up to increase the magnetic field strength, because separation between the energy gaps also increases. But again, required frequency will be radio wave frequency, not any other IR, microwave or UV visible, because they have very high energy region, and here nuclear energy gap will having various nuclear energy gap, the gaping the energy between the nuclear energy levels very low, therefore required frequency also very low. Energy is directly proportional to the frequency, E equals to h nu। तो E एनर्जी भी कम लगना है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या लगेगी, कम ही लगेगी। और जो कम वाली रीजन कौन सा है हमारा, तो कम वाला रीजन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा पार्ट है, दैट इज रेडियो वेव रीजन। ओके, तो hence as increases the strength of H0 external magnetic field, the separation between nuclear energy levels will be increased because they are directly proportional. There is no change in chemical shift. Once again advantage here कि there is no change in chemical shift values of different kinds of protons which present in the sample. But when we have taken NMR at higher field spectrometer like 400 megahertz or onwards 500 600 megahertz, the spectrum will be more and more clear and resolved. Will get more resolved spectrum. Each peak of the spectrum can be easily identified due to रिजोल्यूशन, बेटर रिजोल्यूशन। ओके, तो हमको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो एनर्जी सेपरेशन है बिटवीन टू स्टेट्स अल्फा एंड बीटा वह भी बढ़ता चला जाता है। बट हमको उससे क्या होता है, उससे हमें जो एनएमआर का स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही अच्छा क्लियर मिलता है। हर पीक्स, ईच पीक्स जो है हमें क्लियर दिखती है। और एक और इसका एडवांटेज होता है कि बट देयर इज नो चेंज इन द केमिकल शिफ्ट वैल्यूज ऑफ अदर या प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगेन नेसेसरी फॉर गेटिंग हाई रिजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम। ओके, एंड मोर पावरफुल मैग्नेट मे बी फील्ड स्ट्रेंथ 1 to 20 टेस्ला में भी अरेंज्ड होती है। और इतनी हाई फील्ड होने के बावजूद भी जो एनर्जी गैप होता है न्यूक्लियर एनर्जी लेवल के बीच का, उन दो स्पिन स्टेट्स के बीच का, वो बहुत कम होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.1 कैलोरी पर मोल। एंड दिस एनर्जी गैप अगेन इज द रीजन मतलब ऑफ द लो एनर्जी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज रेडियो वेव रीजन, दैट इज sufficient for the excitation of nuclear spin from low energy state to high energy
state to get resonance of nuclear speed. For NMR purpose, the small energy difference is usually given as a frequency in units of megahertz. यहाँ हम मेगा हर्ट्ज में लेकर चलते हैं, दैट इज़ द 10⁶ हर्ट्ज, और इसकी जो रेंज होती है वो 20 से 900 मेगा हर्ट्ज तक का हम NMR स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा और देखें तो यहाँ एक और बात होती है कि जब हम मॉलिक्यूल में उसका हम NMR स्पेक्ट्रम लेते हैं तो डिफरेंट तरह के प्रोटॉन्स होते हैं जो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ हम जब ये चीज़ें देखते हैं तो अगर सेम प्रोटॉन्स है, उनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम होता है प्रोटॉन्स का, तो वो एक ही केमिकल शिफ्ट वैल्यू देते हैं और दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। उनको एक ही सिग्नल, एक ही पीक देते हैं। और जब डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट हो जाता है प्रोटॉन्स का तो उनसे हमें जो अलग अलग पीक्स मिलती है, अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं, एंड दे आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो द नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीक्स। और जब हम NMR स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो यहाँ हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं, विदाउट एनी स्टैंडर्ड वी कांट जज, है ना। तो यहाँ जो हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं, इन जनरल जो स्टैंडर्ड लिया जाता है वो होता है TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन। टेट्रामिथाइल सिलेन के रिस्पेक्ट में यह देखा जाता है कि पीक जो प्रोटॉन्स की है वो कितनी शिफ्ट हुई है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उसकी वैल्यू को लेते हैं। जनरली जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है वो ये बताती है कि उसने कितना सिग्नल पे हमें पीक मिली है। ओके, तो सपोज 1.2 डेल्टा स्केल होती है केमिकल शिफ्ट वैल्यू की, एंड द रेंज ऑफ द डेल्टा स्केल इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 10 डेल्टा, एंड जीरो वैल्यू जो हमारी आती है वो होती है टेट्रामिथाइल सिलेन। टेट्रामिथाइल सिलेन हैविंग 4 मिथाइल ग्रुप्स arranged in the center metal, that is the 4 methyl groups, and in center silicon is present. Therefore it is called tetramethyl silane, and silicon is the group of the member of the carbon group family, carbon then silicon. And in organic compounds, all compounds are generally consist of carbon and hydrogen bonds, and therefore this technique, NMR technique, is very very useful, and they give more information about the types of protons attached with different kinds of environment containing carbon, carbonyl, aldehyde, carboxylic group। और बिना कार्बन और हाइड्रोजन की कोई कंपाउंड बन नहीं सकता है, और ये सारे कंपाउंड जनरली कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं, और इससे हमें कनेक्टिविटी पता चलती है, और उस कनेक्टिविटी से वी विल गेट फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो हमें जो स्टैंडर्ड हम यहाँ लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, टेट्रामिथाइल सिलेन स्टैंडर्ड लेते हैं, क्योंकि ये हाईली शील्ड होता है। अभी शील्ड होता है, मैं अभी आपको बता रही थी कि सिलिकॉन कार्बन की फैमिली का है, और अप टू डाउन जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। देयरफॉर सिलिकॉन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन, और जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है वो उतना ही ज़्यादा शील्ड होता है। तो जो और शील्ड हो रहा है, और मिथाइल आल्सो प्रेजेंट, 4 मिथाइल ग्रुप्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट इज हाईली शील्डेड, है ना। और इस कारण से क्या है, ऑल कंपाउंड्स known and unknown are generally will be deshielded from the TMS. Therefore we choose the standard as a TMS, and TMS is generally inert in nature, inert nature का होता है। तो हम जब उसको कंपाउंड के साथ मिक्स भी करते हैं सैंपल के साथ, तो दे आर इट इज नॉन रिएक्टिव, इनर्ट है, वोलेटाइल है, इजीली निकल जाता है, देयरफॉर सैंपल विल बी रिकवर्ड। आसानी से हम इसको इवापोरेट किया जा सकता है, वोलेटाइल नेचर का होता है ना। और जितनी जितनी डेल्टा केमिकल शिफ्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके 10 डेल्टा तक, है ना। तो जहाँ हम 0 की स्केल पे आए, दैट इज द TMS, स्टैंडर्ड TMS की वैल्यू आएगी। और ये
हाई बिल्कुल बहुत शार्प आती है. वाई शार्प? बिकॉज इट हैज CH3 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 4 CH3 groups are present, and 4 CH3 it means 12 hydrogens are present in this molecule, and all hydrogens are same, environment same, therefore they absorb only one signal, they give only one peak, they absorb only one signal, they give only one peak, that at delta equals to 0. Okay, and this generally we already told NMR's spectrum is generally measured in ppm. The value of chemical shift is generally measured in ppm, parts per million, for simplicity. And ड्यू टू, मैं अगेन यहाँ हमको केमिकल शिफ्ट जब देखना है तो हम इसको कैसे देखें, एंड व्हाट इज केमिकल शिफ्ट वैल्यू, व्हाट आर द फैक्टर्स विच शिफ्टिंग द प्रोटॉन सिग्नल आइदर शील्ड और डी शील्ड, एंड व्हाट विल बी द मैकेनिज्म हियर. तो हम सब जानते हैं कि जब प्रोटॉन्स कार्बन है, प्रोटॉन से मतलब हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन जब कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन कंटेनिंग होता है, तो वो एक कोई कंपाउंड बनाता है. इन जनरल अगर सिंपल प्रोटॉन्स की बात करें, पीरियोडिक टेबल में जहाँ हाइड्रोजन रखी हुई है वो हम बात करें, तो हमको एनएमआर स्पेक्ट्रम की ज़रूरत ही नहीं होती. देयर इज़ नो नीड फॉर इन जनरल हाइड्रोजन आर लाइक हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, बिकॉज इट इज़ सिंपल मॉलिक्यूल एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, है ना. बट जब ये हाइड्रोजन किन्हीं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड में चला जाता है, जैसे CH3 CH2OH दैट इज इथाइल एल्कोहल, CH3 CH3 इथेन, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, यूरिया एंड अदर टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होने के कारण, कार्बन से लिंक होने के कारण, अलग अलग तरह के ग्रुप्स होने के कारण इसका केमिकल एनवायरनमेंट हर प्रोटॉन्स का मे बी सेम हो सकता है और मे बी डिफरेंट हो सकता है. और इस कारण से जो हम जब ऐसे मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो इंड्यूस्ड फील्ड उसके थ्रू जनरेट होती है, उसमें दो रीज़न, दो उसके कारण हो सकते हैं कि उससे लगा हुआ ग्रुप कैसा है. उस प्रोटॉन से अगर लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर का है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो अपनी सेकेंडरी फील्ड डेवलप करता है, और फिर वही सेकेंडरी फील्ड डेवलप करने के कारण या तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है या उसकी इंटेंसिटी को अपोज कर देता है, मतलब उसके अपोज खड़ा हो जाता है. और इसी के कारण हमको सिग्नल जो पीक होती है एनएमआर पीक, उसकी शिफ्टिंग मिलती है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट इन द molecule. Okay, so protons are attached in a molecule in different kinds of environment, therefore different set of protons experience secondary magnetic field in the presence of applied magnetic field, and generally in these two manners, due to two types of groups are generally attached on that protons, either इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने वाले ग्रुप और मे बी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप. तो नंबर वन थिंग इज डी शील्डिंग मैकेनिज्म, एंड जनरली डी शील्डिंग मैकेनिज्म occurs when electron withdrawing groups present on that type of protons. So when electron withdrawing groups like fluoro, chloro, bromo, nitro, cyano, carbonyl group may be aldehyde, ketone, carboxylic acid COOH and OH, either like of these groups when attached with hydrogen protons, then what will be happen. तो क्या होगा, आप सबको पता है कि यहाँ जब हमारा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड या जैसा भी कंपाउंड है, मतलब ऑर्गेनिक तो है ही है वो, और उस कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो जो कार्बन हाइड्रोजन या फ्लोरीन या कार्बन CO या कार्बन OH, ये सारी बॉन्डिंग कोवेलेंट होती है ना. और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेयरिंग होती है, और जो बॉन्ड होता है आइदर सिग्मा होता है या पाई होता है. और उस कारण से जो बॉन्ड्स बनते हैं
इनमें अगर हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा, और दिस इज परमानेंट इफेक्ट। तो ये हम जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी ओर विथड्रॉ कर लेता है, अपनी ओर पुल्ड कर लेता है, खींच लेता है। कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स। और अगर जब डबल सिंगल अल्टरनेट बॉन्ड होता है तो वहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट और इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है उस ऑन दैट प्रोटॉन विल बी लो, उस प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। और जनरली मतलब वेन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स लाइक दिस वन attached with 8 proton, then electron density of attached bond containing protons will be pulled by that types of groups, and therefore electron density on that proton will be lower। and जब लोअर हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब क्या हो गया, डी शील्ड हो गया। शील्ड हो जाना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाना, और डी शील्ड हो जाना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाना। तो जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स लगे हुए होते हैं तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो खींच लेते हैं उसको। देयरफॉर इट्स, अब वो कमजोर हो जाता है प्रोटॉन, मतलब एक तरह से समझाने के लिए बता रही, मतलब कैसा हो गया, वीक हो गया। तो क्या करेगा वो, अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने आप को अरेंज कर लेगा। तो जो इंड्यूस्ड फील्ड है ड्यू टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोटॉन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड विल बी अलाइन parallel to the direction of the external magnetic field, and therefore the intensity of external magnetic field will be reinforced, बढ़ जाएगी, due to de-shield the nucleus, and this mechanism is called de-shielding, means around the nucleus, around the proton bond density, electron density will be lowered, वो लोअर हो जाती है, लोवर्ड हो जाती है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डी-शील्डिंग। और डी-शील्डिंग के कारण होता क्या है, ये तो हमने इसकी थ्योरी पढ़ी, पर जब हम इस तरह के मॉलिक्यूल का एनएमआर स्पेक्ट्रम लेते हैं या इस तरह के ग्रुप्स के कारण वहाँ डेल्टा वैल्यू जो है वो बहुत हाई हो जाती है। मीन्स अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे एक एग्जांपल, इथेन है CH3CH3 और एक है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन CH3 से डायरेक्टली लिंक्ड है, क्लोरीन इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिसके कारण कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, विल बी लोवर्ड, एंड देयरफॉर हियर डी-शील्डिंग मैकेनिज्म ऑकर। और उससे क्या होगा, डी-शील्डिंग मैकेनिज्म जब ऑकर्स हो जाएगी मतलब क्या होगा, उससे डेल्टा वैल्यू विल बी हाई। तो इथेन में जहां मिथाइल है CH3CH3, वहां CH3CH3 दोनों ही CH3 के केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, और जब सेम केमिकल इन्वायरमेंट है तो वहाँ 6 प्रोटॉन्स, टोटल प्रोटॉन्स विल बी 6, और वो 6 ही प्रोटॉन सेम केमिकल इन्वायरमेंट होने के कारण एक ही एब्जॉर्प्शन सिग्नल देते हैं कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू देते हैं, एक ही एनएमआर पीक वैल्यू देते हैं। और उसकी वो जो रीजन में जनरली हम अगर बात करें मिथाइल क्लोराइड से कंपेयर करें तो इथेन के जितने 6 ही प्रोटॉन हैं they absorb one peak at delta about 0.9 समथिंग, मतलब 1 से भी कम डेल्टा में चला जाता है, और 1 से भी कम डेल्टा में जा रहा है मतलब वेरी वेरी शील्ड हो रहा है। बट अगर हम बात करें CH3Cl की, तो यहाँ CH3 3 हाइड्रोजन कंटेनिंग मिथाइल कार्बन है, और चूंकि ये किससे अटैच्ड है, इट इज अटैच्ड विथ क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर दिस मिथाइल कंटेनिंग जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, डी-शील्ड हो जाएगा, और डेल्टा वैल्यू इसकी अराउंड 2 के आसपास आएगी। तो यहाँ वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, मीन्स डी-शील्ड हो गया। तो बाय शील्डिंग डी-शील्डिंग मैकेनिज्म molecules are differentiated and we can identify the whole spectrum of the molecules. Different types of groups are present, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर होता है उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल का जो जहाँ प्रोटॉन अटैच्ड है उतना ही ज़्यादा डे-शील्ड होता है ना। और डे-शील्ड ऑर्डर क्या होता है, मतलब 0 से जितना हम आगे बढ़ते जाएं, 0 से 1 2 3 4 5 6 7
ये जितना डेल्टा बढ़ता जाता है डेल्टा वैल्यू, उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल में उस प्रोटॉन का हमको क्या मिलता है, डिशील्ड नेचर समझ में आता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसके कारण हमको इतना डिशील्ड वैल्यू मिल रही है, ऑब्जर्व हो रही है। तो थैंक यू वेरी मच। वी विल teach tomorrow next part of the NMR spectrum. Thank you very much.